So next article is Stokes law. Any idea about this Stokes law? This is also called change of phase. This is related with the change of phase. So when a light incident on an interface, for example, if I draw a figure like this, if you have boundary separated by, if this is n1 refractive index of this medium, and this is n2 refractive, or mu1 or mu2, any notation. So if this is the case, incident light, this is normal, and this is reflected back. So incident ray and reflected ray, do they maintain same phase? Incident and reflected ray. So No sir, so phase pi का change जो पाई का पाई का डिफरेंस डिफरेंस So there is additional अगर difference. N2 denser medium है तो So if I put the condition that n2 is greater than n1, it means this is denser, this is rare. For example, Can if you light please is, explain it again, sir? just a minute. Class So if light is incident from a rarer medium, say air, onto a denser medium, say glass, the reflected light will have an additional phase difference of pi or path difference of lambda by 2. Okay, so this is given by Stokes law. Okay, so according to this principle, in the absence of any absorption, so कोई absorption नहीं हो रही, a light ray that is reflected or refracted, refracted is this part, will retrace its original path if its direction is reversed. So अगर मैं यहाँ पे कोई मिरर लगा के इस साइड पे, और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है यहाँ पे मिरर लगा के, if I force these rays to trace back, ठीक है, so they will retrace their original path. So अगर यहाँ से मैं मिरर लगा के इनको रिफ्लेक्ट करूं, so these reflected and refracted ray, they will combine to give the incident ray if their path is reversed. So this is Stokes law. So ये अब हम प्रूव करते हैं मुझे, ठीक है जी. So consider this first picture. Let me explain it on another sheet. So consider this diagram. ठीक है जी, we have an incident ray of amplitude A. ठीक है, reflected light, we have reflected light as well as refracted. ठीक है जी. So if I say the coefficient of reflection from rarer to denser reflection के लिए, so if reflection coefficient from rarer, this is rarer medium, this is denser medium, ठीक है जी. If this is R, ठीक है, and then transmission or refraction, transmission coefficient from rarer to denser, if this is T, so इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, rarer to rarer, पहला केस, यहां से rarer medium से गया and this is reflected back, this is reflected back in rarer medium, so coefficient is R. So reflected ray का coefficient amplitude क्या हो जाएगा, if original amplitude is A, this is A into R,
एंड रेयर टू डेंसर जब जा रहा है तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या है, टी, सो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ए इंटू टी। क्लियर है जी? अब ये सेम सिचुएशन है, ये यहां अगर मैं इसको मिरर लगा के या किसी और मेथड से, if I force these rays refracted and reflected to retrace back and hit again at this point, तब क्या होगा? सो सेम डायग्राम फिर से बना लेते हैं। सो वो ओरिजिनल रे को करेगा ओवरलैप। सो अब ये हमारे पास दो रेज हैं, एक का कोफिशिएंट मैं इसको रीट्रेस करवा रहा हूं, दिस इज ए आर एंड दिस इज ए टी, ठीक है। और यहाँ पे कोफिशिएंट डिफरेंट हो जाएंगे। So now I again define reflection from, so this is reflection, this is transmission. So now denser to denser reflection, if this is r prime, ठीक है, और ट्रांसमिशन डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में तो है टी प्राइम, ठीक है जी। सो इफ a ray of amplitude AR is incident at this point O, ठीक है, and is reflected back, तो कितना कोफिशिएंट होगा बच्चे यहाँ पे, AR रिफ्लेक्ट हुई रेयरर मीडियम से वापस रेयरर मीडियम में, AR इंटू आर डैश, AR, यहां देखो रेयरर टू रेयरर है R, सो AR इंटू R, ठीक है। अब ये AR है, रिफ्लेक्ट हुई है, कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट भी होगा, तो कितना होगा ट्रांसमिशन, ये एम्पलीट्यूड इस वेव का यहाँ पे इस AR इंटू टी, AR इंटू टी, टी, इसे टी होगा ना। हाँ, रेयर टू डेंसर जा रहे हैं, ये रेयर टू डेंसर जा रहे हैं, सो रेयर टू डेंसर है टी, ठीक है जी। सो एक वेव तो कंप्लीट कर ली हमने ये वाले कोएफिशिएंट वाली, अब हमारे पास दूसरी वेव भी है ए टी, इट इज आल्सो हिटिंग एट पॉइंट ओ, सम पार्ट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एंड सम पार्ट विल बी ट्रांसमिटेड। सो अगर ए टी एम्पलीट्यूड है ओरिजिनल, तो रिफ्लेक्ट हो रहा है डेंसर मीडियम से वापस डेंसर मीडियम में, क्या होगा कोएफिशिएंट अब एम्पलीट्यूड, ए टी आर डैश, ए टी आर डैश इंटू आर डैश, ये रही। और अब AT वाला जो ओरिजिनल रे थी ये ट्रांसमिट भी होगा, सो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना आएगा, AT इंटू, ये अब जा रहा है डेंसर टू रेयर, सो डेंसर टू रेयर AT इंटू टी डैश, ठीक है जी। अब स्टोक्स थ्योरम बोल रही है, स्टोक्स लॉ बोल रहा है कि ये जो है, ये अगर मैं यहाँ इनको वापस कर देता हूँ रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड रे को, दे विल रिप्रोड्यूस द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड A। सो इस साइड तो एम्पलीट्यूड है A इस डायरेक्शन में, ये जो हमारे पास दो कोएफिशिएंट आए ये और ये दोनों मिलके A बना रहे हैं, ठीक है। सो पहली इक्वेशन हो गई A इज इक्वल टू AR स्क्वायर, लिख देता हूँ इसको, प्लस AT इंटू टी प्राइम, फर्स्ट इक्वेशन। इस साइड देखो फर्स्ट डायग्राम में इस साइड कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, जीरो एम्पलीट्यूड, ठीक है। बट यहाँ क्या दिखा रहा है, ये यहाँ कुछ एम्पलीट्यूड दिखा रहा है, तो मैं इसको भी बराबर कर देता हूँ, जीरो इज इक्वल टू AT R प्राइम प्लस ART। सो ये मेरी दो इक्वेशंस हो गई, क्लियर है। नाउ इफ आई सॉल्व देम, so I will get further two equations, t prime is equal to 1 minus r square, ये थर्ड इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन से निकल के आ रही है। और सेकंड इक्वेशन से आपके पास आएगा r prime is equal to minus of r, फोर्थ इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन से निकल के आ रही है। सो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। सो एक तो हमें मालूम चल गया कि r prime is equal to minus r, थर्ड इक्वेशन से हम t prime की वैल्यू कैसे निकालेंगे, we know that energy is conserved, सो AR एम्पलीट्यूड इसका स्क्वायर कर दें प्लस A ऑफ T, ये एम्पलीट्यूड है इसका स्क्वायर कर दें, इट इज इक्वल टू A स्क्वायर, एनर्जी इज कंजर्व्ड, सो फ्रॉम दिस वी गेट R स्क्वायर प्लस T स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और सिंपली 1 माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू T स्क्वायर, using this relation in this equation. So this is energy conservation relation. So 1 minus R square is T square.
ठीक है जी। सो यहाँ पे वैल्यू मैं फिर से ये put कर आपने दूं। फिफ्थ इक्वेशन कैसे लिखी थी? AR² + AT का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A²। एनर्जी कंजर्वेशन अब एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्शन प्लस कोफिशिएंट एनर्जी जो है रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिशन इज इक्वल टू ओरिजिनल एम्पलीट्यूड। अच्छा एनर्जी सर, क्या ये है? स्टार्टिंग वाली है सर जो हाँ स्टार्टिंग मेन। वाली स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड है। ओके सर। ये इस सिचुएशन में कि एनर्जी कंजर्व रहती है क्योंकि हमने कंसीडर किया है कि कोई लॉस नहीं है, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है। सो ये उस केस में है। सो टी टी सर प्राइम ओके सर। कम्स आउट टू बी टी स्क्वायर। सो एक टी कैंसिल कर देता हूँ। सो दिस मींस टी प्राइम इज इक्वल टू टी। सो एक ये रिलेशन आ गया, एक हमारे पास ये रिलेशन था आर प्राइम इज इक्वल टू माइनस आर। सो दिस सजेस्ट दैट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इन मैग्नीट्यूड आर सेम, चाहे रेयर टू डेंसर जाओ या डेंसर टू रेयर जाओ, बट आर प्राइम क्या है? is equal to minus r. So there is, due to this negative sign, there is additional phase difference of pi involved when light is reflecting from incident from uh, rarer side, reflected by a denser medium and goes back. ठीक है? So ये a और ये जो a r वाला जो ray है, so this is r original ray and this is r1 for example, and this is r2. So the phase difference between r and r1 is pi. ठीक है, क्लियर है जी? So reflection and just a minute. Reflection and transmission coefficient are same whether the light is incident from rarer or the denser medium. Presence of negative sign shows that there is phase change of pi when light is reflected at a denser interface. So जब भी ये condition true होगी n1 and n2 such that n2 is greater than n1, ठीक है? So ये आपके पास रे 1 है और ये रे 2 है। So additional phase difference of pi or path difference of lambda by 2 is there in R2 as compared to R1 ray when reflection takes place from denser medium. ठीक है जी? रेयर मीडियम को आप ये भी बोल सकते हो कि ये रेयर मीडियम है, हाई वेलोसिटी, सो हाई वेलोसिटी रीजन। सो यहाँ में जो रे है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, डेंसर मीडियम में रिलेटिवली लो वेलोसिटी होगी एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। क्लियर है जी? कोई डाउट बचे? सर हाँ निश बोलो। प्रीवियस स्लाइड पे जाना सर, यहाँ प्राइम का क्या मतलब है? आप नोटेशन डिफरेंट यूज कर लो बजाय R1 T1 R2 T2। प्राइम का मतलब है कि अगर लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है रेयर से रेयर मीडियम में, जैसे कि ये है, रेयर पे आई और वापस रेयर में चली गई, तब मेरा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है R। अब क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया ना यहाँ पे N2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अगर डेंसर से कोई लाइट रिफ्लेक्ट यहाँ पॉइंट पे हिट करी वापस यहाँ चली गई, तो उसके इसमें रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट R प्राइम है। तो हमने कंसीडर कर लिया this R and R prime are we have considered different because the refractive index we are taken as different. तो उसकी वजह से अगर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तब कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, आर प्राइम और आर दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, और अगर ट्रांसमिट यहाँ ये जो फेज डिफरेंस ऑफ पाई आ रहा है, दिस इज ओनली फॉर द केस ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर इज नो चेंज ऑफ फेज इन केस ऑफ ट्रांसमिशन, चाहे आप रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन करो रेयर मीडियम से, रेयर इंटरफेस से या डेंसर इंटरफेस से, देयर इज नो चेंज ऑफ फेज इन केस ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। तो ये याद रखना बच्चे, आने वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं सब में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। देयर इज ओनली फेज डिफरेंस बिटवीन फेज डिफरेंस ऑफ पाई व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम डेंसर मीडियम। अच्छा, ये अगर अब मैं केस करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये डेंसर मीडियम है ऊपर वाला और ये रेयर मीडियम है। नाउ लाइट इज कमिंग फ्रॉम denser medium onto rarer interface and is reflecting back. Now if this is R1, this is R2, what is the phase difference between R1 and R2? Zero. Zero phase, zero. There is no additional phase. अब यहाँ दोनों में, यहाँ भी मैं N1 और N2 लिख देता हूँ। Again N1 is greater than N2 here. So ये उस सिचुएशन के लिए है, ठीक है। सो अगर डेंसर से डेंसर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, देयर इज नो चेंज ऑफ फेज, बट इफ इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर इंटरफेस रेयर टू रेयर, देन देयर इज चेंज ऑफ फेज
पाई पाई के Sir? कॉरस्पॉन्डिंग। हाँ जी विजय। सर जो हमने पाई का फेज डिफरेंस बोला है वो हमने मतलब जो इक्वेशन में माइनस आया उसी की वजह से मतलब वहां से उसी की डिडक्ट वजह से। करके बोला है। हाँ जी बिल्कुल। ओके सर अच्छा जस्ट अ मिनट, अब ये फेज डिफरेंस ऑफ पाई कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 कैसा है? आपकी ये वेव अगर मैं प्लॉट करूं 0 to 2 पाई फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक साइन वेव बना देता हूं, एंड दिस कंप्लीट लेंथ इज वेवलेंथ लैम्डा, सो इट मींस 2 पाई के कॉरस्पॉन्डिंग है आपके पास लैम्डा, पाई के कॉरस्पॉन्डिंग कितना पाथ हो जाएगा? लैम्डा बाय 2, ठीक है। हाँ निश बोलो। सर यहाँ पे आपने कहा ना अगर मीडियम डिफरेंट होंगे तो वो तो हमने अज्यूम किया अपनी तरफ से, हमने इसको ये लेके नहीं चले कि दोनों कोफिशिएंट बराबर है, हमने अज्यूम किया दे आर डिफरेंट, और एंड में हमने क्या फाउंड किया? वी हैव फाउंड दैट दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड, ओके सर। ठीक है। so this is about Stokes law. Next article is interference in thin films. thin film क्या होती है मुझे? So bubble. पतली लेयर। thin films कोई So एप्लीकेशन bubble. याद है? कोई एप्लीकेशन कहाँ यूज होती हैं thin films? बोलो भाई। thin film फॉर एग्जांपल पोलराइड में यूज होती है, आपके ग्लासेस में, स्पेक्ट्स में शीट चढ़ी होती है, कार की विंडशीट पे होती है, ग्लास के ऊपर होती है, विंडोज के जो ग्लास हैं फॉर एग्जांपल एरोप्लेन में या होटल्स में, सो दे आर laminated with the thin films in order to avoid the glare. सर थिन फिल्म्स ग्रेटिंग में इस्तेमाल होती है? हाँ obviously. So thin films are of two categories in our syllabus. Parallel thin film, ठीक है, of this type. So they are parallel thin film, and second one is we have wedge shape thin film, inclined जिसको बोलते हैं. So these are wedge shape thin film. These are used in Newtonic experiment. ठीक है. So first we will do interference in parallel thin film. So इसमें फाइंड करते हैं कि सर होती क्या है सर थिन फिल्म? सर एक्सप्लेन कर सकते बच्चे थिन फिल्म के कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ. फॉर एग्जांपल आपके पास ये ग्लास स्लैब है, बहुत ग्लेयर आ रही है इससे, सो अगर आप इसके ऊपर एक कोट चढ़ा देते हो फिल्म का, जैसे ब्लैक शीट नहीं होती ग्लास के ऊपर, उसी तरह उसी वे में, सो अगर आप एक कोट इसका ग्लास के ऊपर चढ़ा देते हो ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म, सो यहाँ से आपको जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही थी वो जीरो हो जाती है, ग्लेयर जो आती है ना वो जीरो हो जाती है. सो अब इसको देखते हैं मुझे कि ये अच्छा सर तो बिफोर, पूरी ट्रांसमिट हो जाती है ऐसा सर? हाँ कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है और जो रिफ्लेक्शन है उसको रिड्यूस कर देती है. वो डिपेंड करता है आप किस एंगल से देख रहे हो या आपकी क्वालिटी ऑफ थिन फिल्म क्या है, उसका रिफ्लेक्टिव सर तो इंडेक्स मतलब क्या है. एब्जॉर्प्शन हो जाता है सर उसमें ऐसा? हाँ ओके सर. सो अच्छा अगर आपको इससे पहले एक चीज में रह गई थी, दो रेज हैं मुझे, ये मैं थिन फिल्म की एग्जांपल दे देता हूँ. यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है और ये रे, ये ओरिजिनल है आपकी, और ये रिफ्लेक्टेड 1, ये रिफ्लेक्टेड 2. टू रेज ये कंस्ट्रक्टिवली कब इंटरफेयर करेंगी? सर जब फेज डिफरेंस मतलब पाई एन पाई हो सर. तो जब 2d sin थीटा n लैम्डा होगा. एक तो सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में बाद में बात करेंगे. सो R1 एंड R2 दे शुड हैव सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है, एंड दे शुड बी इन सेम फेज, तभी क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ पड़ेगा ना. सो कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉर द केस ऑफ टू रेज इज दैट दे आर शुड बी ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड दे आर शुड बी इन सेम फेज, ठीक है, सेम एम्पलीट्यूड एंड फेज कंस्ट्रक्टिव के लिए. डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंप्लीट ब्लैक कब होगा? Different amplitude same and different amplitude phase. and sir pi phase. सेम एम्पलीट्यूड
एंड आउट ऑफ फेज, पाई का जो है आप बोल रहे हो। अच्छा, सेम एम्पलीट्यूड होना जरूरी है? हाँ जी सर। Yes, because only then crest will cancel the trough. अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो सब्ट्रैक्ट होके कुछ ना कुछ इंटेंसिटी आपको मिनिमा के ऊपर भी मिलेगी। If you want complete destructive interference, then you should have R1 and R2 should have same amplitude and should be out of phase. Additional phase difference of pi, ठीक है, should be there. So now let us move on to the next article. Interference in thin parallel film. In parallel thin films. So इसकी एक डायग्राम बना के देखते हैं। So ये let us consider this thin film, ठीक है। ओरिजिनल रे ऑफ लाइट ए बी, इसकी ज्योमेट्री ध्यान से समझना मुझे। ए बी is hitting onto the point B. This thin film has reflective index of mu and thickness of T, ठीक है। T thickness की ये फिल्म है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मटेरियल का mu. Original ray of light is hitting at point B onto this film from rear to denser medium. ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। Some part will be reflected. If this is angle I, angle of incidence, ठीक है, then and some part will be transmitted, and this is angle R, refraction angle. This will be again reflected from this point, ठीक है, and further transmitted, ठीक है। This is point C. This is point E, and this ray is, we call it as BF, first transmitted reflected light, and this is EG, ठीक है। So ये clear है बच्चे यहाँ तक? Now if this is angle R, if I divide the triangle BCE is isosceles triangle, दोनों साइड सेम है इसकी। If I draw a perpendicular from point C onto BE, ठीक है, it will hit at point K, ये 90 है, ठीक है। Also, if I draw a perpendicular from point E onto BF line, like this, if this is 90, this angle will be I, ठीक है। ये आप ज्योमेट्री से निकाल सकते हो। ये एंगल I है, ये 90 माइनस I है, तो ये भी 90 माइनस I होगा। अगर ये 90 है तो यहाँ I आएगा एंगल, ठीक है। So this is the geometry, ठीक है। Now to understand what kind of fringes are formed when reflected light ray interfere. So ये जो लाइट है BF and EG, मैंने पहले दो लाइट्स ही कंसीडर की रिफ्लेक्टेड, देयर आर मल्टीपल रिफ्लेक्टेड लाइट्स। सो जब ये इंटरफेयर करेंगे तो आपके पास किस तरह का पैटर्न आएगा, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम आगे स्टडी करते हैं। द पाथ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज। तो अगर आपको फाइंड करना है कि एक BF लाइट एंड EG लाइट दे आर इंटरफेयरिंग कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली, so you have to first find what is the path difference between these two lights, ठीक है जी। so path difference कितना होगा BF and EG में? if I denote path difference as delta S, path difference, optical path traveled by light inside the denser medium, that is optical path. so delta S कितना होगा बच्चे? BCE मतलब जितना भी होगा। ये जो लाइट ट्रेवल की है D point, D पॉइंट। अच्छा आप यहां देखो, D पॉइंट के बाद और E पॉइंट के बाद दोनों रेज सेम पाथ ट्रेवल कर रही हैं। प्रॉब्लम कहां आ रही है? ये जब लाइट रेयर मीडियम में पॉइंट O से पॉइंट B से, ये पॉइंट B है, पॉइंट B से D तक जा रही है, इतने में डेंसर मीडियम में वो जा रही है BCE पॉइंट, ठीक है। सो जो पाथ डिफरेंस आ रहा है
वो इन दोनों पाथ के डिफरेंस की वजह से आ रहा है, क्योंकि डी पॉइंट के बाद ये सेम है, ई पॉइंट के बाद ये सेम है, क्योंकि आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सो पाथ डिफरेंस क्या होगा अब? पाथ डिफरेंस इज म्यू टाइम्स BCE, जो ये इसने डेंसर मीडियम में पाथ ट्रेवल किया है, और म्यू टाइम्स, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग है, ऊपर एयर है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर मैं 1 ले लूं, माइनस म्यू टाइम्स BD, म्यू इज 1 हियर, एयर कंसीडर किए, BD जो एयर में ट्रेवल किया। सो दिस इज द पाथ डिफरेंस। उसके बाद DF एंड EG दे डोंट हैव एनी पाथ डिफरेंस। ठीक है, सर पार्ट डिफरेंस एक बार और बता दीजिए प्लीज। बच्चे पाथ डिफरेंस क्या होगा? आपको पाथ डिफरेंस निकालना है BF एंड EG लाइट में, रे में। ठीक है, आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम पॉइंट E ऑन टू द रे BF, ये पॉइंट D पे मीट किया। ठीक है, अब पॉइंट DF, पॉइंट D के बाद जो रे है DF, और पॉइंट E के बाद जो है EG, दे आर पैरेलल एंड दे डोंट हैव एनी पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस आ कहां से रहा है? या ये जो पाथ है BD, और ये जो डेंसर मीडियम में ट्रेवल किया ये सारा पाथ BCE, इसकी वजह से आ रहा है। सो अगर दोनों सेम है तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर दोनों में BCE और BD डिफरेंट है, so there is path difference, so which we need to add in between the two rays, interfering rays. So mu times BCE, BCE and minus, अब ये एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ठीक है, इसलिए उसको 1 लिख दिया मैंने, माइनस BD। अब हमारा एम क्या है? नाउ आवर सर एम इज माइनस क्यों कर रहे हैं सर ये चीज तो? बच्चे पाथ डिफरेंस कैसे निकालोगे दो रेज में? अच्छा ओके, वो अलग है ना, देखा है, ओके है ओके। ना, वो डेंसर मीडियम में कितना चला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से, और वो रेयर मीडियम में कितना चला है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एयर कंसीडर कर रहे हैं हम, तो उसको 1 लिख दिया मैंने। सो दोनों के बीच में जो पार्ट, फॉर एग्जांपल एक ने 1 मीटर ट्रेवल कर लिया, दूसरे ने 1.5 मीटर ट्रेवल कर लिया। सो दोनों को उनके विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मलाइज करेंगे, देन उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, दैट इज द एडिशनल पाथ डिफरेंस, चाहे वो BF रे में हो या EG रे में हो, पर दोनों इंटरफेयर कर रहे हैं तो पाथ डिफरेंस तो जाके ऐड होगा ना कहीं कहीं ना कहीं, तो वो इंटरफेरेंस में इफेक्ट करता है। नाउ आवर एम इज टू फाइंड BCE एंड BD, तो ये एम है हमारा। ठीक है, अभी मैंने यहां से क्लियर कर दिया है कि if this is angle I is angle of incidence, angle R is angle of refraction, so यहाँ with geometry ये वाला एंगल I हो जाएगा। ये एंगल क्या होगा बच्चे? BCK, ये एंगल क्या होगा? BCK R R, में हाँ, होती है। दो पैरेलल लाइन है ना, ये थोड़ा टेढ़ा लग गया मुझसे बच्चे, अदरवाइज ये स्ट्रेट है, ये और ये पैरेलल है, नॉर्मल है। ठीक है, सो ये भी R होगा और ये भी R हो जाएगा। ठीक है, सो अभी आपके पास एंगल्स भी क्लियर है, क्लियर है जी। नाउ ट्रायंगल BCE, यहां देखना मुझे, ट्रायंगल BCE इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? परपेंडिकुलर CK, ये जो परपेंडिकुलर है CK, परपेंडिकुलर CK डिवाइड्स द बेस, बेस क्या है? BE, ये जो बेस है, डिवाइड्स BE इक्वली। सो आपका BK, यहां से जो आपको पता लग रहा है कि BK इज इक्वल टू KE, मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर अनदर, अब हमें BC फाइंड करना है पहले तो, क्योंकि BCE इज इक्वल टू BC प्लस CE, तो मैं BC और CE फाइंड कर लेता हूं, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास पाथ BCE आ जाएगा। अब BC कहां से फाइंड करेंगे मुझे? BC, सर हमें टी पता है ना सर, तो हाँ, उसमें थिकनेस मालूम है आपको। तो यहां अब मैं ये वाली ट्रायंगल अगर ले लूं, है ना, इनमें से कोई भी एक ट्रायंगल, दोनों सेम ही आएंगी। तो CK बाय CE,
मैं यहाँ पे क्लियरली बना देता हूँ मुझे। सी के, दिस इज एंगल आर and this is thickness T and this is E. So CK by CE is equal to cos R. CK is thickness T, ये T के बराबर है। So यहां से हमारे पास क्या आ गया, BC या is equal to CE, दोनों बराबर है, ठीक है। BC and CE they are same, equals to T times secant R, ठीक है ना। CE is equal to T by cos R, 1 by cos R is secant R। तो यहां से मेरे पास ये आ गया, BC is equal to CE is equal to T secant R। ये वैल्यू जब मैंने यहाँ पुट की, so I'll get T secant R plus T secant R is equal to 2T secant R. This is BCE. अब नेक्स्ट क्या है, हमें फाइंड करना है BD। BD कैसे फाइंड करोगे? BD इन ट्रायंगल, यहां से इन सर ट्रायंगल, हाँ जी सर यहाँ सर पहले हम बीई की लेंथ निकाल सकते हैं ना। हाँ, BE की भी निकाल सकते हैं, तो वही कर रहा हूं बच्चे मैं। इन ट्रायंगल BDE, यहां से हम BD क्या होगा, BD by BE is equal to tangent sine, BD by BE is equal to sine of I, ठीक है। ये ट्रायंगल मैं फिर से बना देता हूं। This is perpendicular D, this is B, this is angle I, and this is point E. So BD by BE is equal to, ये हाइपोटेन्यूज है sin I, ठीक है जी। So BD क्या हो गया, BE sin I, ठीक है जी। सर हाँ जी, सर हाइपोटेन्यूज डी नहीं होगा? हाँ मुझे DE होगा। हाँ सो अच्छा, अब हमारा मोटिव क्या रह गया, BD इन टर्म्स ऑफ BE sin I लिख दिया। अब हमें BE फाइंड करना है, तो BE कैसे फाइंड करोगे? tan r सर वो डबल हो जाएगा। ये जो ये आपकी ये वाली जो ट्रायंगल है ना, आप यहाँ से उठा सकते हो। सर 2 टाइम्स बी के yes, करता है 2 बी के टाइम ऊपर BK ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो और इन tan r इक्वल टू tan बी के इन अपॉन के। ट्रायंगल BCE, मैं इसी पेज पे लिख रहा हूँ मुझे, सो मैं ऊपर लिख देता हूँ। इन ट्रायंगल BCE, BE इज इक्वल टू 2 टाइम्स BK, yes sir, और BK क्या होगा, 2 टाइम्स BK इज इक्वल टू tan R और T हाँ। tan R, 2T tan R, T Yes, tan sir. R हो गया ना, तो yes sir, टेंजेंट R। सो ये आपका BE हो गया, ठीक है जी। सो BD क्या हो गया, BE ये रहा, ये वैल्यू अगर मैं वहां पुट कर दूं, सो आई विल गेट 2T टेंजेंट R इंटू साइन ऑफ I, ठीक है। ये मेरा BD हो गया। अब ये याद रखना, BD सिंपली 1 के साथ है, ठीक है, और ऊपर वाले में म्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। अब मैं अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो BD हो गया आपका, मैं दोबारा लिख देता हूं, 2T tan ऑफ R इंटू साइन ऑफ I। अब BCE वाला जो है, उसमें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पार्ट डिफरेंस, और जो एयर वाला है उसमें हो नहीं रहा। तो अब क्या करेंगे हम, वी अप्लाई स्नेल्स लॉ। ये आपने पढ़ा होगा स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R। दिस इज स्नेल्स लॉ ऑप्टिक्स में। सो यहां साइन I की वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन I इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन R, ठीक है जी। सो दिस इज 2T टेंजेंट R and sin I mu times sin R, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग।
ठीक है जी. So this will become 2 mu t. टेंजेंट को खोल लिया sin ir by cos r. So this will become sin square r into 1 by cos r. 1 by cos r को मैं लिख सकता हूँ secant r. ठीक है जी. तो ये आ गया. BCE कितना था? BCE R 2t sec r. 2t secant r. 2 mu t second. म्यू तो बाद में आएगा ना मुझे. सो डेल्टा एस हमने क्या डिफाइन किया था? म्यू टाइम्स BCE PCE. माइनस 1 इंटू BD. Yes, sir. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो दिस विल म्यू यहाँ हो गया 2 म्यू टी सेकेंड आर माइनस BD की वैल्यू है 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर सेकेंड आर. अब आपको मालूम चलेगा कि सेकेंड आर मैंने क्यों लिखा था, क्योंकि मैंने कॉमन निकालना है यहाँ पे. सो इफ आई टेक 2 म्यू टी सेकेंड आर एज कॉमन, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर? Cos square r. cos square r. So ये simply cos से कट जाएगा. 2 mu t cos r. into cos square r. So we'll simply get 2 mu t cos r. This is your path difference. ठीक है जी. सो अभी आपको इक्वेशन मालूम चलेगी कि 2 mu t cos r जो आप यूज करते हो ये कैसे आती है. अच्छा, इज इट ए करेक्ट पाथ डिफरेंस 2 mu t cos r? यस सर. कोई एरर तो नहीं है इसमें जो हमने कैलकुलेशन की है? सर हमने फेज डिफरेंस कंसीडर किया है क्या? Yes, जब हम yes. हाँ सर वही. So this is the point here. आपने रिफ्लेक्शन लिया यहां से एक, ठीक है, ये था रेयर मीडियम, ये है डेंजर. एक रिफ्लेक्शन यहां से गया R1 वेव फॉर एग्जांपल, ये मैं नाम डिफरेंट ले लेता हूं, ठीक है, और ये नीचे वाला भी मीडियम है, और ये ट्रांसमिट कर गई कुछ पार्ट, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, और फिर ये ट्रांसमिट हो गई. सो ये R2. सो आप R1 और R2 को इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हो. ये जो आप पाथ डिफरेंस निकाल रहे हो R1 और R2 के बीच में निकाल रहे हो. 2 पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ, एट पॉइंट नंबर 1 एंड एट पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 1 पे रिफ्लेक्शन हुआ रेयर टू डेंजर, रेयर से रेयर में गया, पर कहां से रिफ्लेक्शन हुआ? डेंजर इंटरफेस से. देयर शुड बी एडिशनल फेज डिफरेंस ऑफ पाई और लैम्डा बाय 2. ठीक है. अब ये जो पॉइंट 2 से रिफ्लेक्शन हुआ है, इस केस में क्या होगा? सर इस केस में नहीं होगा. Because light is reflecting from rarer interface, denser to denser जा रही है. So there is no phase difference or path difference. So same ही रहेगा. So आपको additional path difference lambda by 2 because of reflection from denser medium, rarer to rarer जा रही है light. So आपको यहाँ पे एक additional lambda by 2 add करना पड़ेगा अपनी तरफ से. Only then this will be a correct path difference. सर एक भाई लैम्डा बाय 2 का एक बार कांसेप्ट बता दो फिर से. समझा नहीं मुझे. मैं लैम्डा बाय 2 कैसे? जो आपने भी ये फेज डिफरेंस का कांसेप्ट बताया था ना, एक बार फिर से बता दो. बच्चे इफ आप इतना याद रखो कि अगर लाइट रेयर टू रेयर मीडियम में जा रही है, सो आपको लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस में या पाई फेज डिफरेंस में ऐड करना पड़ेगा. अब यहाँ पॉइंट 1 पे भी रिफ्लेक्शन हुई, पॉइंट 2 पे. पॉइंट 1 जो है दैट इज फ्रॉम रेयर टू रेयर थ्रू डेंजर मीडियम, डेंजर इंटरफेस से. ठीक है. सो इस केस में आपको पाई या लैम्डा बाय 2 डिपेंड करता है आप फेज यूज कर रहे हो या पाथ डिफरेंस यूज कर रहे हो, ये ऐड करना पड़ेगा. दूसरा केस है डेंजर टू डेंजर थ्रू रेयर इंटरफेस. यहाँ पे आपको जीरो पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस, यहाँ पे कुछ नहीं चेंज करना. सो पॉइंट 1 जो है वो रेयर टू रेयर मीडियम जा रहा है थ्रू डेंजर. पॉइंट 2 जो है वो डेंजर टू डेंजर वापस उसी मीडियम में जा रहा है, बट रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम रेयर इंटरफेस. सो इस इंटरफेस को आप बोलोगे रेयर इंटरफेस. तो यहाँ पे कोई पाथ डिफरेंस नहीं आएगा, और यहाँ पे जो आएगा वो है लैम्डा बाय 2. नाउ सिंस वी आर एडिंग finding the path difference between R1 and R2, so हमने ऑप्टिकल पाथ तो निकाल लिया. ऑप्टिकल पाथ जो लाइट जो दोनों R1 और R2 एक्चुअली ट्रेवल कर रही हैं, बट
reflection from denser medium will add another phase difference or path difference of lambda by 2. ठीक है? ओके सर। तो ये आपका पाथ डिफरेंस हो गया। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी? ये मैंने बिगिनिंग में करवाया था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है? लैम्डा के कैसा मल्टीपल होना चाहिए? लैम्डा होगा। हाँ, तो आपका डेल्टा एस पाथ डिफरेंस 2 mu t cos r plus lambda by 2, it should be for constructive interference delta s should be n lambda। n lambda। ठीक है, सो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 mu t cos r is plus lambda by 2 is equal to n lambda, और 2 mu t cos r is equal to, यहाँ क्या आएगा? 2n minus 1 lambda by 2। ठीक है, दिस इज कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और ब्राइट फ्रिंजेस। अच्छा, इसको मैं 2n minus 1 lambda by 2 को अगर मैं ऐसे लिख दूं 2n plus 1 lambda by 2, तो कोई फर्क है? नो सर। क्योंकि जीरो से start हाँ, उसमें depend है। so because since we are taking the value of n from 0, अगर मैं यहाँ 2n minus 1 में 0 पुट करूंगा तो ये minus lambda by 2 आ जाएगा। And since we are considering the forward wave, not the backward, so मैं इसको 2n plus 1 यूज कर लेता हूँ, where n start from 0, 1, 2, 3 onwards. So ये जो आपकी आगे कंडीशन 2 mu t cos r is equal to 2n plus 1 lambda by 2 is the condition for bright या कंस्ट्रक्टिव। डार्क के लिए क्या होगी? डिस्ट्रक्टिव या डार्क के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2n plus 1 by plus half lambda। सर 2n plus 1 upon 2 lambda। 2n plus 1 lambda by 2, यस सर। है ना? वो ये क्योंकि n plus half lambda। आधी वेवलेंथ का फर्क होना चाहिए। आधी वेवलेंथ का फर्क होगा तभी क्रेस्ट ट्रफ पे फॉल करेगा। सो इसलिए ये वैल्यू हम पाथ डिफरेंस की पुट करते हैं। 2 mu t cos r plus lambda by 2 is equal to 2n plus 1 lambda by 2। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो विल गेट 2 mu t cos r is equal to n lambda। ठीक है जी, दिस इज कंडीशन फॉर डार्क। n can take value from 0, 1, 2, 3 onward। so clear हो गया मुझे? 2 mu t cos r is equal to 2n plus 1 lambda by 2 for bright, 2 mu t cos r is equal to n lambda for dark। clear है ये conditions? यस सर। and now remember all of these conditions, ये जो भी आप कुछ ये पूरी स्लाइड पे कर रहे हो, this is all for reflected light। आप रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटरफेरेंस करवा रहे हो अभी। सो ये कंडीशन है रिफ्लेक्टेड के केस में ब्राइट की कंडीशन है, और रिफ्लेक्टेड के केस में डार्क की कंडीशन है। ट्रांसमिटेड लाइट भी तो हो सकती है ना, वो भी इंटरफेयर कर सकती है। तो वो देखते हैं। सो नई डायग्राम बनाता हूँ। सो आपके पास ये एक स्लैब थी, यहां से आपके पास नॉर्मल से ट्रांसमिट हुई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये यहां से रिफ्लेक्ट हुई और ये ट्रांसमिट हो गई। सो ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई, बट यहां से रिफ्लेक्ट होने के साथ साथ ट्रांसमिट भी तो होगी, और यहाँ ट्रांसमिट होने के साथ साथ रिफ्लेक्ट भी तो होगी। और ये जो है, ये फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्टेड लाइट 1, रिफ्लेक्टेड लाइट 2, ये है ट्रांसमिटेड लाइट 1, ट्रांसमिटेड लाइट 2, सो ऑन। सो इस तरह से आपके पास मल्टीपल रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट आएगी। अच्छा, हमने सिर्फ पहली दो क्यों कंसीडर की हैं? तो वो ब्राइट होंगी, बाकी बिकॉज मेजर कंट्रीब्यूशंस आर कमिंग फ्रॉम R1 एंड R2। उसके कंपैरिजन में बाकी जो है फ्रैक्शनल एम्पलीट्यूड रह जाता है। सो आप उसको कंसीडर करो ना करो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ठीक है बच्चे। सो ये जो है ट्रांसमिटेड लाइट वाला कॉन्सेप्ट, और इसकी फर्दर जो रह गया डिटेल्स विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास।